کراچی کے کرکٹ شائقین کی چھٹی کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ سابق کپتان سرفراز نے کہا پاکستانی ٹیم بہتر پوزیشن میں ہے۔ جاوید میاں داد، سرفراز، راشد خان، وسیم باری، توصیف احمد اور معین خان میچ دیکھنے اسٹیڈیم پہنچ گئے۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے باہر آل پاکستان مسلم لیگ کے کارکنوں کا مظاہرہ، سکھ رہنما بھی شریک ہوئے۔ شرکا کی سابق صدر پرویز مشرف کے حق میں نعرے بازی، کہا 40 سال تک ملک کی خدمت کرنے والے کو غدار کہنا درست نہیں۔ واشنگٹن میں سابق صدر پرویز مشرف کے حق میں پاکستانی نیاد امریکی باشندوں کی ریلی، سول سوسائٹی کے عہدیداروں کی شرکت۔ کارگل جنگ کے ہیرو کو غدار کہنا مناسب نہیں، شرکا کی گفتگو۔ باب العلم انسٹیٹیوٹ برمنگھم کے زیر اہتمام حافظ اینڈ عالم گریجویشن سیرمنی اور سیرت کانفرنس، عالم کورس اور قرآن حفظ کرنے والے بچوں بچیوں کی دستار بندی، سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ پاکستان کونسلیٹ برمنگھم میں محفل میلاد کا انعقاد، لارڈ میئر سمیت سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کی شرکت۔ نعت خواں حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ نامور شاعر امجد اسلام امجد کو ترکی کے نجیب فاضل ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ پروقار تقریب میں ترک صدر رجب طیب اردوغان کی خصوصی شرکت۔ نمایاں ایوارڈ ملنا باعث اعزاز ہے، امجد اسلام امجد کی 92 نیوز سے گفتگو۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام چلنے والے اسکول میں مینا بازار سج گیا۔ سفیر پاکستان سمیت پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ پاکستان کے ثقافتی رنگوں کو مقامی لوگوں نے بھی خوب سراہا۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر پرویز مشرف کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ شرکا نے سابق صدر کو سزائے موت دیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ برطانوی دارالحکومت لندن میں قائم پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر آل پاکستان مسلم لیگ کے کارکنوں نے مظاہرہ کیا، جس میں سکھ رہنما بھی شریک ہوئے۔ شرکا نے سابق صدر پرویز مشرف کے حق میں نعرے بلند کیے۔ شرکا نے سابق صدر کے خلاف فیصلے کو متعصبانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ 40 سال تک ملک کی خدمات کرنے والے کو غدار کہنا انتہائی غلط ہے۔ یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے اداروں کو تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے۔ مشرف صاحب کے لیے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، جنہوں نے اپنے 40 سال اس ملک کو دے دیے، جنہوں نے جنگیں لڑی، جنہوں نے سیاچن کارگل میں پاکستان کے جھنڈے گاڑے۔ جو اوورسیز کمیونٹی ہے پاکستان کی، وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ پاکستان آرمی اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ملکی سرحدوں کا دفاع کر رہی ہے، اور اس قسم کے فیصلے پاکستان آرمی کو کمزور کرنے میں ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ، آئینی طور پہ، ہر لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس چیز سے پاکستان کمزور ہوگا۔ پاکستان آرمی کلی آرمی ہے جڑی کھڑی ہے اتھے، کوئی بالا ملک کوئی دوسری آرمی نہیں سپورٹ کردی، تائیں آرمی دی سپورٹ کرو تے مشرف ہونا دی سپورٹ کرو۔ ہم عدلیہ کے خلاف نہیں ہیں، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، لیکن چند جو فیصلہ ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ جو انڈیا میں یہ لکھا گیا ہے۔ جو ان کا فیصلہ ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور میں بالکل جنرل پرویز مشرف کو سپورٹ کرتی ہوں۔ I am here to support Pervez Musharraf and the Pak Army. We want justice for Pervez Musharraf. یہ پاک فوج کی شان کے خلاف انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے۔ میں برمنگھم تو آئے تھے لندن to show solidarity to the Pakistan Army and to President Musharraf. کارکنوں نے مطالبہ کیا کہ پرویز مشرف کو سزائے موت دیے جانے کا فیصلہ جلد از جلد واپس لیا جائے۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ واشنگٹن میں سابق صدر پرویز مشرف کے حق میں پاکستانی نیاد امریکی باشندوں نے ریلی نکالی۔ ریلی میں سول سوسائٹی کے عہدیدار بھی شریک ہوئے۔ تفصیلات خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔
अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हक में पाकिस्तानी नियाद अमरीकी बाशिंदों ने रैली निकाली। साबिक सदर के खिलाफ अदालती फैसले पर शुरा में सख्त गम गुस्सा देखने में आया। 40 बरस जो इस कौम की करता रहा खिदमत, मुशर्रफ इस जंग से फरार नहीं है। इस देश की मिट्टी में सदा आती है, अब तक वो मेरा वफादार है, गद्दार नहीं है। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो गद्दारी का इल्जाम लगाया गया उसकी मजम्मत करते हैं। इस मौके पर शुरा का कहना था कि कारगिल जंग के हीरो को गद्दार का लकब देना इंतहाई शर्मनाक फेल है। खाना काबा को दहशत गर्दों से पाक करने वाले और पाकिस्तान के लिए 3 जंगें लड़ने वाले को सजाए मौत का फैसला देना मुल्क और कौम के साथ गद्दारी है। हम अदलिया के फैसले की मजम्मत करते हैं और जो कुछ फैसला हुआ है इट्स नामंजूर। बिल्कुल आर्मी के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। शुरा का कहना था कि सदर परवेज मुशर्रफ एक मुहब्बे वतन हुक्मरान थे जिन्होंने हर मौके पर सबसे पहले पाकिस्तान की बात की। इन जैसे लीडर को इस तरह अक़वाम आलम में बदनाम करने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है। जनरल परवेज मुशर्रफ को सजा दी है, वो हम उसे किसी कीमत पर कबूल नहीं करते। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। रैली में मौजूद लोगों का मजीद कहना था कि जल्द से जल्द ये फैसला वापस लिया जाए, वरना हम व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे और इस मसले को अमरीकी ऐवान तक ले जाएंगे। ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है, ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबुल इल्म इंस्टीट्यूट बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम यूके में हाफिज एंड आलिम ग्रेजुएशन सेरेमनी और सीरत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। कुरान हिफ्ज करने वाले बच्चों, बच्चियों और आलिम कोर्स मुकम्मल करने वालों की दस्तार बंदी की गई और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। बर्मिंघम से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद काज़मी। बाबुल इल्म इंस्टीट्यूट बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम यूके IM स्पार्क ब्रो सेंटर में हाफिज एंड आलिम ग्रेजुएशन सेरेमनी और 6ठी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आलिम कोर्स मुकम्मल करने वालों और हिफ्ज कुरान करने वाले बच्चों और बच्चियों की दस्तारबंदी की गई और सर्टिफिकेट दिए गए। आला कारकर्दगी के हामिल बच्चों को तहाइफ और कैश इनामात से भी नवाजा गया। बाबुल इल्म इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल मुफ्ती मोहम्मद फारूक अलवी, डॉक्टर मोहम्मद खालिद और दीगर ने कहा, बरतानिया में इस्लामोफोबिया जैसे चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बच्चों को दीनी तालीम से रोशनास कराना ज़रूरी है। चारों फ़िक़्ह जो हैं हमारी अहले सुन्नत की, उनको हमने कंबाइन किया है, फ़िक़्ह शाफ़ी, हम्बली, मालिकी, हनफी। तो इसलिए कि ये मल्टी कल्चरल माशरा है इंग्लैंड में और यहाँ हर तरह के लोग होते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे तलबा जो हैं वो हर एक के साथ उसकी फ़िक़्ह के मुताबिक डील कर सकें। 6 बच्चियाँ लास्ट ईयर जो है ना वो आलिमा बनी थी और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे जो है ना वो आलिम बन रहे हैं और 2 हाफिज़ बन रहे हैं और पिछले साल जो है 2 हाफिज़ बने थे। बच्चे और बच्चियाँ दोनों इस मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर मुसलमानों में काम कर सकें, उनको मुत्तहिद कर सकें और उनको इस्लामिक मैसेज से आगाह कर सकें और उसके साथ साथ जो यहाँ पर होस्ट कम्युनिटी है, नॉन मुस्लिम्स हैं, उन तक भी पहुँच सकें। The event, it was to honor the students and host the students who became ulama and who became huffaz. Obviously this is the beginning of a very long journey. I personally don't feel that I have reached that level yet. This is the very beginning and the beginning of a journey which will inshallah lead until Allah Azza wa Jal gives me tawfiq to carry on learning and treading the path of knowledge. यूके इस्लामिक मिशन बरतानिया भर में दीनी तालीम के लिए अरसा दराज से खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इदारे ने बाबुल इल्म इंस्टीट्यूट के जरिए एजुकेशन सेंटर कायम कर रखे हैं जहां आलिम कोर्स और हिफ्ज कुरान की तालीम दी जाती है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इटली के शहर चेंतो में कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफीर नदीम रियाज, पाकिस्तान फेडरेशन के नुमाइंदों और मकामी अतालवी हुक्काम और कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। देखते हैं तनवीर इरशाद की ये रिपोर्ट। इटली के शहर चेंतू में पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुकामी कौंसिल की जानिब से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए चेंतू कश्मीरियों के साथ है कि उन्वान से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी इटली में पाकिस्तान के सफीर नदीम रियाज थे। दीगर शुरा में पाकिस्तान फेडरेशन इटली के सदर चौधरी बशीर उमरा, जनरल सेक्रेटरी आसिफ रजा, इस्लामिक सोसाइटी इटली के सदर ताहिर महमूद, ब्रेशिया के जोनल काउंसलर इरम ताहिर, निसार रोलिया भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान अतालवी हुकूमत के नुमाइंदों और मुकामी शहरियों को कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म
जुल्म सितम की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। पाकिस्तानी सफीर नदीम रियाज ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि खित्ते की अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम एक आजाद मुस्लिम मुल्क और एटमी ताकत हैं। भारत की मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियाँ अपने ही मुल्क के आइन और बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ हैं। चेंतो में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया कश्मीर के हवाले से। इसके अंदर पाकिस्तानी स्पीकर्स भी थे और बहुत से इटालियन लोगों ने भी कश्मीर के बारे में बात की और सबका एक यूनानिमस ओपिनियन था कि जो कश्मीरी हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और द कश्मीरीज शुड बी गिवन द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एज प्रॉमिस्ड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। चौधरी बशीर उमरा ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों के लिए जिस तरह इटली के पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आवाज उठाई है वो काबिल सत्ताइश है। मसला कश्मीर के हल तक हम अक़वाम आलम का ज़मीर झंझोड़ते रहेंगे। इटली में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरा ख्याल है 5 अगस्त से लेकर आज तक जितने रैलियां निकाली हैं और या जुलूस निकाले हैं या कॉन्फ्रेंसें की हैं कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इतना किसी ने एहतजाज नहीं किया जितना पाकिस्तान कम्युनिटी इटली में रहने वाली ने किया। आसिफ रजा का कहना था कि 4 माह से ज़ायद वक्त तक अगर किसी यूरोपीय मुल्क में कर्फ्यू नाफिज किया जाता तो अब तक दुनिया इस पर अमली इक़दामात कर चुकी होती, लेकिन मसला कश्मीर पर खामोशी अफसोसनाक है। चेंतो कम्युनिटी बोलोनिया ने ये जो प्रोग्राम इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया और यहाँ पे जितनी तादाद में इटालियन मौजूद थे एसोसिएशंस पे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के और दीगर, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को सराहा और देखा और आज उनको पता चला कि कश्मीर का मसला असल में है क्या। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं। ये लोग मिलके इटालियन कम्युनिटी के साथ जो मिलके काम कर रही हैं काबिल सताइश है और हमारे लिए बहैसियत कम्युनिटी एक फ़ख्र की बात है कि हमारी कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी ऑफिशियल लेवल पे भी एक्टिव है। 140 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं कि 80 लाख से ज़्यादा जो कश्मीरी जेल में बंद हैं और उनके सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सलब कर लिए गए हैं। इस मौके पर चेतू में पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमा ताहिर महमूद ने शुरका की कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर इनका शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की नामवर अदबी शख्सियत अमजद इस्लाम अमजद को तुर्की के नजीब उल फाजिल अवार्ड से नवाज दिया गया है। तकरीब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खुसूसी शिरकत की। नुमाइंदा 92 न्यूज़ आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। इस्तांबुल के हलीज कांग्रेस मरकज़ में नजीब फाजिल इंटरनेशनल कल्चर एंड आर्ट अवार्ड की तकरीब हुई, जिसमें तुर्क सदर तैयब एर्दोगान, नायब सदर फवाद ओक्टे, वज़ीर सकाफत महमद नूरी, वज़ीर ख़जाना बिरात अल-बैरिक, पाकिस्तानी सफ़ीर सजाद साइरस समेत मुतअद्दिद नुमाया शख्सियात शरीक हुई। इस मौके पर अमजद इस्लाम अमजद को अदबी और फ़नी दुनिया में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने पर अवार्ड से नवाजा गया। अपने खिताब में सदर एर्दोगान ने कहा, अमजद इस्लाम अमजद जदीद उर्दू अदब के अहम शायर हैं जो ड्रामा निगारी में भी अहम मकाम रखते हैं। सदर एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान ब्रदर मुल्क और काबिल एहतराम दोस्त है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में अमजद इस्लाम अमजद ने अवार्ड मिलने पर अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। ये अवार्ड मेरे लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए एक ख़ास अहमियत रखता है कि ये पहली बार किसी पाकिस्तानी को ये इनाम मिला है और जैसा आपने सुना कि जवान साहब ने अपनी तकरीर में भी मेरे बारे में भी मोहब्बत की बातें की, लेकिन पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत मुस्लिम बातें की हैं, बहुत खूबसूरत बातें की हैं और ग़ालिबन यही मैं समझता हूँ कि मेरे ज़ाती इनाम से ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात यह है कि किस तरह हम जो मुसलमान भाई हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों। तकरीब में तुर्क शायर इब्राहिम, मरियम काले, मुसन्निफ सैमल एकार, मुख्तसर कहानियों के मुसन्निफ एमन गोर्द मोर को भी अवार्ड से नवाजा गया। आतिफ भट्ट 92 न्यूज़ इस्तांबुल तुर्की। सऊदी अरब में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल नासरिया में मीना बाजार मुनाकिद किया गया, जिसमें बच्चों ने पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के अलावा दीगर स्टॉल्स लगाकर अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। उमर अली की ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम चलने वाले पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल नासरिया में मीना बाजार सजाया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली इजाज़, तुलबा और असातिज़ा समेत कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। मीना बाजार में पाकिस्तान के चारों सूबों के सकाफती मॉडल्स के अलावा मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम को तस्वीरी शक्ल में दिखाया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर अली इजाज़ ने खाने पीने के स्टॉल्स का दौरा किया। उन्होंने कहा, मीना बाजार जैसे इवेंट जहाँ बच्चों की सलाहियतों को उभारते हैं, वहीं असातिज़ा और बच्चों के रिश्ते को भी मजबूत बनाते हैं। जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, ना सिर्फ क्लासरूम्स में आप पढ़ने आते हैं बल्कि साथ एक सारी ज़िंदगी का एक रिश्ता जोड़ते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने उस्ताद के साथ।
تو میں اس موقع کی نسبت سے اپنے بچوں کو یہ کہنا پسند کروں گا کہ وہ نہ صرف یہ رشتے بنائیں بلکہ ان کو مستحکم کریں. آنے والے وقت میں یہ آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کے اساتذہ ان کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ہر کامیابی آپ کے قدم چومیں گے. اس موقع پر اساتذہ اور طلباء نے کہا اس ایونٹ سے نہ صرف تفریح کا موقع میسر آیا ہے بلکہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے. یہ ایک کمیونٹی سینٹر سمجھ لیں, لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے, پرانے طلباء آتے ہیں, وہ اپنے استادوں سے ملتے ہیں اور بچوں کی ایک اپنی ٹریننگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں کمیونٹی جو سال ہر سال سے بچے یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے یہاں مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں, بڑے ہائی فائی رینکس پہ آتے ہیں. ہم لوگ 5 سال بعد اسکول میں آئے ہیں اور یہ ہم لوگوں کو ایک واحد ذریعہ ملا ہے اپنے استاد سے واپس ملنے کا, ان کو ہمارا سکسیسفل کے بارے میں بتانے کی. ان کی تعلیم کی وجہ سے ہمیں آج اتنے مقام پہ ایسی جاب ملی ہے, ایسے اسٹڈی ہم نے کی ہے. ماشاء اللہ سے ان کو مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے. اچھی چیزیں یہاں پہ مل رہی ہیں, لذیذ کھانے, مزیدار گرم گرم, اور موسم بھی بہت پیارا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. اسکول کے پرنسپل ایئر کموڈور ریٹائرڈ نعیم اختر نے کہا پاکستانی اسکول کے طلباء نہ صرف ہونہار ہیں بلکہ مستقبل میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے. عمیر علی, 92 نیوز, ریاض, سعودی عرب. بلٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. اشرف غنی ایک بار پھر کامیاب ہو گئے ہیں. مد مقابل صدارتی امیدوار عبداللہ نے نتائج کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. افغانستان میں امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ ابھی ابتدائی نتائج کا اعلان ہوا ہے. حتمی نتائج کے اعلان سے قبل بہت سارے اقدامات کرنا باقی ہیں. افغان صدارتی انتخابات کے نتائج آ گئے. افغان الیکشن کمیشن نے ابتدائی نتائج کے مطابق صدر اشرف غنی کو دوسری مدت کے لیے فتح یاب قرار دے دیا. الیکشن کمیشن کے مطابق اشرف غنی نے 50.64% ووٹ حاصل کیے. ان کے مخالف عبداللہ کو 39.52% ووٹ پڑے, جبکہ گلبدین حکمتیار 3.85% ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے. افغان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے صدر اشرف غنی کے مخالفین انتخابی نتائج کو چیلنج کر سکتے ہیں, تاہم الیکشن کمیشن نے یہ نہیں بتایا کہ حتمی نتائج کا اعلان کب کیا جائے گا. دوسری جانب عبداللہ نے دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے نتائج مسترد کر دیے. افغانستان میں امریکی سفیر جان باس نے کہا کہ ابھی ابتدائی نتائج کا اعلان ہوا ہے. حتمی نتائج کے اعلان سے قبل بہت سارے اقدامات کرنا باقی ہیں. رواں سال 28 ستمبر کو منعقدہ صدارتی انتخابات کے نتائج بدعنوانی کے الزامات اور ووٹوں کی گنتی میں تکنیکی مسائل کی وجہ سے تاخیر کا شکار تھے. ملک بھر سے سیاحوں نے بڑی تعداد میں چھٹیاں منانے کے لیے ملکہ کوثر کا رخ کر لیا ہے. دن بھر بھوربن, پتریاٹا اور گلیات میں برف کے نظاروں سے بھرپور لطف اٹھایا اور شام ہوتے ہی مال روڈ پر نکل پڑے. دیکھیے سدھیر عباسی کی رپورٹ میں. ملکہ کوثر مری میں رواں ہفتے ہونے والی برف باری کے بعد اور اسکولوں میں موسم سرما کی چھٹیاں ہوتے ہی سیاحوں نے یہاں کا رخ کر لیا. دن بھر سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں. سیاح دن میں بھور بن اور گلیات میں برف سے لطف اندوز ہوتے رہے, ایک دوسرے پر خوب برف کے گولے برسائے. گلیات کے حسین اور دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد ایوبیا اور نتیا گلی امڑ آئی. سیاحوں نے برف پر خوب ہلا گلا کیا, روایتی دھنوں پر رقص کر کے خوب رنگ جمایا. شام ہوتے ہی سیاح مال روڈ پر نکل آئے. یخ بستہ سردی میں گرما گرم چائے اور کافی کا مزے لیتے رہے. مری کے دیوانوں نے ملکہ کوثر کے حسن کی بھی خوب تعریف کی. بہت مزہ آ رہا ہے. ابھی ہم مال روڈ پہ ہیں اور یہاں پہ اتنا صحیح انجوائے کر رہے ہیں, اور دن کو ہم نے بہت زیادہ برف دیکھی ہے سائڈوں پہ, اور بہت زیادہ رش اور بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. بہت انجوائے کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ. راستے میں ہم نے برف باری دیکھی اور بہت ہی دلکش نظارے تھے. بچے یہاں پہ آ کے بہت خوش ہیں. ہر پاکستانی کو چاہیے کہ اپنے
मुल्क को एक्सप्लोर करें। हम सुबह अयूबिया गए हैं, हमने वहाँ पे पिक्स बनाई हैं, स्नोफॉल वहाँ पे अब बहुत आइस थी वो देखी है, और खाना भी खाया है। मंकीज बहुत अच्छे थे। मलका कौसार में ट्रैफिक को रवा रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन भी खिदमात सर अंजाम देते रहे। इस वीकेंड पे 25,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ मरी शहर में दाखिल हुई हैं। इस वक्त भी मरी शहर में बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन किसी भी जगह ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक रवां दवा है। तमाम रोड यूज़र से गुजारिश है, जितने भी सयाह हज़रात मुल्क के तूलो अर्ज़ से आ रहे हैं वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। सयाह फैमिलियों ने गर्म मलबूसात, टोपियाँ और ड्राई फ्रूट भी खरीदे। खून जमा देने वाली सर्दी के बावजूद सयाह रात देर तक माल रोड पर चहलकदमी करते रहे। सुधीर अब्बासी, 92 न्यूज़, मरी। और अब एंटरटेनमेंट। सर्दी की खुनक रातों में पेशावर में सजा रंगारंग फैशन शो, जिसमें खूबसूरत मॉडल्स ने मशहूर डिजाइनर्स के वार्डरोब ज़ेबतन करके समा बांध दिया। पेशावर से देखिए राहम यूसुफजी की ये रिपोर्ट। रंग और रोशनी की चमक धमक में रैंप पर वॉक करती मॉडल्स जलवे दिखा रही हैं पेशावर में होने वाले एक फैशन शो में। मॉडल्स ने मुख्तलिफ डिजाइनर्स के तैयार करदा मलबूसात ज़ेबतन करके रैंप की, तो खूबसूरत मलबूसात के साथ साथ मॉडल्स की अदाओं ने भी हाजिरीन को खूब मुतासिर किया। सर्द मौसम की मुनासिबत और रंगों के हसीन इम्तिजाज से तैयार किए गए ये मलबूसात खैबर पख्तूनख्वा के 5 डिजाइनर्स के तैयार करदा थे। फैशन शो का मकसद सूबे की खवातीन को फैशन डिजाइनिंग की तरफ राग़िब करना था। जितना भी काम हम करते हैं वो कॉन्सेप्ट पे होता है, तो हमने अभी भी जो काम किए वो एक आर्टिस्ट जो फील करता है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो काम हुआ है। इसी तरह के शोज होने चाहिए पेशावर में, क्योंकि पेशावर में काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। फैशन शो में माहौल में उस वक्त मौज मस्ती भर गई जब पश्तो मौसीकी के बादशाह रबाब के तार चढ़े गए। शुरका का कहना था कि ऐसे इवेंट से जहां आए रोज फैशन में आने वाले नए ट्रेंड्स के बारे में आगाही होती है, वहीं तफरीह का मौका भी मिलता है। कैमरामैन अजमल खान के साथ राहम यूसुफजई, 92 न्यूज़, पेशावर। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।